Namaste students, welcome back to my channel. Students, in your previous classes you have studied about ionic bonding or covalent bonding, but today in this video we are going to introduce a new kind of bonding, and the name of that bonding is hydrogen bonding. So today's our topic is hydrogen bonding. In this video we'll cover the definition of the hydrogen bonding, means what is hydrogen bonding, the conditions which are required for the formation of the hydrogen bonding, the strength of the hydrogen bonding, means how hydrogen bonding becomes more and more strong. So the strength of the hydrogen bonding, and finally the types of the hydrogen bonding. So हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या, सेकेंड क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, थर्ड व्हाट इज द स्ट्रेंथ, क्या फैक्टर्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मोर स्ट्रॉन्ग करते हैं, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. So first of all, we'll talk about the definition of the hydrogen bonding. That what is hydrogen bonding? Hydrogen bonding होती क्या? So whenever a molecule contains hydrogen which is attached with a highly electronegative atom, in that case, the shared pair of electrons are shifted more towards the electronegative atom, as a result of which there is a partial negative charge generated at that end and partial positive charge generated at that end where the hydrogen is present. Clear? आया कुछ समझ में? जब एक मॉलिक्यूल में, whenever a molecule contains hydrogen, whenever a molecule contains hydrogen, जब एक मॉलिक्यूल जिसके पास हाइड्रोजन होता है attached with highly electronegative atom, highly electronegative atom, वो जो हाइड्रोजन है वो किससे अटैच्ड होना चाहिए? with highly electronegative atom. In that case, whenever a molecule contains hydrogen attached with the highly electronegative atom, then the shared pair of electrons, shared pair of electrons, जो shared pair of electrons होंगे between that electronegative atom and hydrogen, the shared pair of electron move towards the electronegative atom, as a result of which it acquires partially negative charge. It acquires partially negative charge. Partial negative charge means slightly negative charge. Slightly negative charge. So it acquires partially negative charge, while the hydrogen end acquires partially positive charge. Positive charge. Clear? Now the positive end of one molecule is attracted by the negative end of other molecule, and hence a bond is formed which is known as hydrogen bond, which is known as
हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर बेटा? सो जब हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा विच कंटेन्स हाइड्रोजन, but that hydrogen should be attached with highly electronegative atom, वो हाइड्रोजन किससे अटैच होना चाहिए? with the electronegative atom. In that case the shared pair of electron moves towards the electronegative atom. shared pair of electron किसकी तरफ चले जाएंगे? towards the electronegative atom. As a result of which जो electronegative atom होगा उस पे क्या जनरेट हो जाएगा? एक partially negative charge, एंड जो आपका हाइड्रोजन एंड होगा उस पे क्या क्रिएट हो जाएगा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज. सो जो पॉजिटिव एंड होगा एक मॉलिक्यूल का वो किसके थ्रू अट्रैक्ट होगा? द नेगेटिव एंड ऑफ द अदर मॉलिक्यूल और वाइस वर्सा. मीन्स द नेगेटिव एंड ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव एंड ऑफ द सेकेंड मॉलिक्यूल. सो इन दैट केस a force of attraction is created, a bond is formed, and that bond is known as hydrogen bond. उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड. बट बिकॉज यहाँ पे जो अट्रैक्शन हो रहा है दैट इज इन बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, दैट्स व्हाई द हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीकर बॉन्ड. जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है हमारा वो कैसा बॉन्ड होता है? वीकर बॉन्ड होता है. सो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इट इज एक्चुअली force of attraction between partial positive charge and partial negative charge, but due to partial and partial positive and partial negative, this bond is a weak bond. ये bond हमारा क्या है? weak bond है. Let us take one example, HF, that is hydrogen fluoride. HF. Now here I have a molecule of HF. Clear? Now the covalent bond is present between hydrogen and fluorine. यहाँ पे हमारा क्या present है? covalent bond present है. Now because fluorine is more electronegative than hydrogen, तो यहाँ पे क्या होगा? Slightly negative in fluorine and slightly positive, means delta positive, delta negative. It is delta like this. ये हमने ऐसे curve करके किया है like this one. Clear? So if it is not visible like this. Clear? So delta positive and delta negative. Delta negative means slightly negative charge. Delta positive means slightly positive charge. Now इसके पास एक और molecule होगा. Now that molecule also contain hydrogen and fluorine. उसके पास भी हमारा क्या होगा? hydrogen and fluorine present होगा. Here it is partially negative charge. Here it is partially positive charge. Now the positive end of one molecule is attracted by the negative end of the other molecule. इन दोनों के बीच में क्या होगा? force of attraction, and that force of attraction is known as hydrogen bond. इसको हम क्या कह देंगे? hydrogen bond. And as we have shown here, जो hydrogen bonding है हमारी वो हम किसके थ्रू ड्रॉ करते हैं? with the dotted line. इसको हम ड्रॉ किसके थ्रू करते हैं? विद द हेल्प ऑफ द डॉटेड लाइन. यहाँ पे हमने डॉटेड लाइन बनाई है लाइक दिस. क्लियर? सो हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा कैसे शो होता है? थ्रू द डॉटेड लाइन. सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट वाटर, हियर इट इज ऑक्सीजन, हियर इट इज हाइड्रोजन, हियर इट इज हाइड्रोजन. सो बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, सो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ को मूव होंगे? टुवर्ड्स ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन पे क्या जनरेट होगा? पार्शियली नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे क्या क्रिएट होंगे? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज. सो इसके एडजेसेंट में हमारे क्या प्रेजेंट होंगे आपके? अगेन अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. इस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में भी आपका क्या क्रिएट होगा? चार्ज दैट इज पार्शियली नेगेटिव एंड पार्शियली पॉजिटिव. एंड बिकॉज here it is hydrogen which is attached with the electronegative atom, and here is the oxygen. So यहाँ पे क्या create होगा? A force of attraction, and that force of attraction is known as hydrogen bonding. उस force of attraction को क्या कहते हैं? hydrogen. So these two are the covalent bonds and these two are the hydrogen bonds. ये दो हमारे covalent bond है और ये दो हमारे क्या है? hydrogen bond. So this is the definition of the hydrogen bonding. ये हमारी definition है. I hope definition आपको clear हो गई होगी कि जब हमारे पास कोई ऐसा molecule होता है which contain hydrogen, that hydrogen is attached with the electronegative atom. In that case वहाँ पे partial positive and partial negative charge create होता है, and when the force of attraction is there between the partial positive and the partial negative charge, then वहाँ पे एक bond बनता है, and that bond is known as
हाइड्रोजन बॉन्ड, उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड. Now we will discuss the conditions which are required for the formation of the hydrogen bond. So the conditions which are required for the formation of hydrogen bonding: first, the molecule must contain an electronegative atom, linked to the hydrogen atom. फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है कि जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होना चाहिए, और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव शुड बी लिंक्ड विद द हाइड्रोजन एटम. वो हाइड्रोजन एटम से लिंक्ड होना चाहिए, ईदर थ्रू द आयनिक बॉन्ड और थ्रू द कोवेलेंट बॉन्ड, कुछ भी हो. सो the molecule must contain an electronegative atom linked to the hydrogen atom. This is the first condition. Now the second condition is the size of electronegative atom. The size of electronegative atom should be small. Should be small. जो साइज है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का, वो साइज हमारा क्या होना चाहिए बेटा, छोटा. सो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल ऐसा होना चाहिए दैट कंटेन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विच इज अटैच्ड विद द हाइड्रोजन एटम. और सेकंड कंडीशन क्या है बेटा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमारा स्मॉल इन साइज होना चाहिए. एंड थ्रू दीज टू कंडीशंस, ये जो कंडीशंस हैं हमारी, इन कंडीशंस के बेसिस पे एक टर्म याद रखना, दैट इज फोन. फोन, बट दैट इज नॉट अ फोन. टेलीफोन नहीं कह रही मैं. आई एम नॉट सेइंग फोन, आई एम सेइंग फोन. फोन. सो फोन स्टैंड फॉर FON, दैट इज फोन. ये हमारा फोन है. सो ये जो हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की बात कर रहे हैं, these electronegative atoms should be either fluorine, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. इन तीनों में से कोई एक होगा. Why? Because these three are electronegative atom first of all, और these three have small size. इन तीनों का साइज भी क्या होता है हमारा, छोटा. So if we have fluorine, oxygen or nitrogen in the molecule and hydrogen is attached with these molecules, then we get hydrogen bonding in that molecule. अगर हमारे पास मॉलिक्यूल में इन तीनों में से कोई एक प्रेजेंट है और इसके साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल अमोनिया. इफ आई टॉक अबाउट अमोनिया, here it is NH3, ammonia. Now here it is nitrogen and here it is hydrogen. So as a result of which, partial negative, partial positive, and partial positive. So now here I have another molecule of ammonia. यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, अमोनिया का दूसरा मॉलिक्यूल होगा. So it also contain partial positive, partial negative, positive, partial positive. Now the force of attraction is created between partial positive and partial negative, and that is the hydrogen bond. ये हमारी क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. सो कंडीशंस हमारी ये है, बट इन दोनों कंडीशंस को प्रूव कौन करता है, सेटिस्फाई कौन करता है, ओनली फोन, दैट इज फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. क्लियर. एंड इसका सिंपल सा लॉजिक क्या है हमारा, इफ वी टॉक अबाउट HCl, in HCl we didn't get hydrogen bonding. हमें HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलती है, though the electronegativity of chlorine is similar to that of the oxygen. जो क्लोरीन है, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑलमोस्ट ऑक्सीजन के सिमिलर है, बट फिर भी हमें HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलती. Why? Because the size of the chlorine is not smaller. The size of the chlorine is bigger. तो size बड़ा हो गया, इसलिए हमें hydrogen bonding नहीं मिली. So both the conditions are satisfied by only FON, that is fluorine, oxygen and nitrogen. So ये हमारी conditions हैं which are required for the hydrogen bonding.
Now we'll study the strength of the hydrogen bonding. So strength of hydrogen bonding means hydrogen bonding कब हमारी strong होती है, कब हमारी weak होती है. First thing, keep in your mind that hydrogen bond is a weak bond. ठीक है, पहली बात तो ये अपने दिमाग में बिठा लो कि हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा एक वीक बॉन्ड है. इफ वी कंपेयर आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड विद द हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा बहुत ही वीक बॉन्ड है. क्लियर. बट इफ वी टॉक अबाउट अदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, अगर हम बाकी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड को कंपेयर करें, सो हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. क्लियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, but depending on the electronegativity difference, what I am saying that depending on the electronegativity difference, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं दैट in which molecule we have stronger hydrogen bond and in which molecule we have weaker hydrogen bond. किस molecule में हमारे पास क्या होता है, weaker hydrogen bond होता है. So if I talk about the bond dissociation enthalpy of HF, ठीक है, मैंने डॉटेड लाइन शो की है, यानी जो मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बता रही हूँ वो हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्ड की बता रही हूँ, ना कि दूसरे बॉन्ड्स की. सो HF में जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, फॉर दैट द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज 41.8 किलोजूल पर मोल. क्लियर. द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इन केस ऑफ HO बॉन्ड में जो हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है, दैट इज 29.3 किलोजूल पर मोल. दैट इज 29.3 किलोजूल पर मोल. एंड HN में जो हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है, दैट इज 12.9 किलोजूल पर मोल. क्लियर. ये तीन हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं. इन केस ऑफ HF, जो हमारा HF है, बिकॉज व्हाट वी हैव स्टडीड, हमारे सिर्फ तीन ऐसे एटम्स हैं जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. So in case of fluorine, when fluorine is attached with the hydrogen, when fluorine is attracted with the hydrogen through hydrogen bond, so उस केस में हमारा जो bond dissociation enthalpy होगी, what is bond dissociation enthalpy? These all are bond dissociation enthalpies. Bond dissociation enthalpies, ये सारी हमारी bond dissociation enthalpies हैं. So bond dissociation enthalpies क्या होती हैं? The amount of energy which is required to break the bond. बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कहते हैं. सो इन केस ऑफ HF, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. इन केस ऑफ HO इतनी, इन केस ऑफ HN इतनी. सो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, if we talk about the electronegativity of fluorine, oxygen and nitrogen, the order is fluorine, oxygen and nitrogen. ये electronegativity का order है. means on moving fluorine to nitrogen, electronegativity decrease हो रही है, and due to the decrease in the electronegativity, जो हमारी bond dissociation enthalpy है वो भी क्या हो रही है, decrease. यानी कम एनर्जी देके हम बॉन्ड को इजीली क्या कर ले रहे हैं, ब्रेक. और कम एनर्जी देके अगर हम बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, इट मीन्स द बॉन्ड इज अ वीकर बॉन्ड. और अगर हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इट मीन्स बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड. सो more the electronegativity of that atom which is attached with the hydrogen, more the electronegativity of that atom which is attached with the hydrogen, more is the strength of the hydrogen bonding, greater is the strength of the hydrogen bonding. So जितनी ज्यादा electronegativity होगी attached electronegative atom की, हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ही क्या होगा, हमारा स्ट्रॉन्ग बनेगा. एंड दिस वी कैन प्रूव विद द हेल्प ऑफ दीज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज. हम किसकी हेल्प से प्रूव कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. सो बेसिकली जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा मतलब एटम उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और अगर एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा. क्लियर. नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. नेक्स्ट में हम किसकी बात करेंगे,
टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. नाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी दो टाइप्स की होती है. वी हैव टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. फर्स्ट, intermolecular hydrogen bonding, intermolecular hydrogen bonding, and second, intramolecular hydrogen bonding, intramolecular hydrogen bonding. Now intermolecular hydrogen bonding means क्या है? The hydrogen bonding between two same or different molecules. जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी दो सेम या दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी, इंटर मीन्स इन बिटवीन. सो अगर हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो सेम या दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी, दैट इज टर्म्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. उसको हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू मॉलिक्यूल्स ऑफ HF. I have two molecules of HF. सेम मॉलिक्यूल है हमारे पास HF के, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में हो रही है? फ्लोरीन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन ऑफ अदर मॉलिक्यूल. ठीक है, सो देन इट इज इंटरमॉलिक्यूलर. क्लियर? और सपोज आई हैव वन मॉलिक्यूल ऑफ HF और वन मॉलिक्यूल ऑफ H2. मेरे पास एक मॉलिक्यूल HF का है और एक मॉलिक्यूल H2O का है. देन अगेन the hydrogen bond is in between the fluorine of one atom, one molecule and hydrogen of other molecule. It means जब दो सेम मॉलिक्यूल और दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, then that is known as intermolecular hydrogen bonding. So when the hydrogen bonding is present between the two same or the two different molecule, then it is known as intermolecular hydrogen bonding. But when the bonding is present between within the molecule, when the bonding is present within the molecule, within the molecule, within the molecule, एक ही मॉलिक्यूल में अगर हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो रही है, then it is known as intramolecular. Then it is known as intramolecular. Now एक ही मॉलिक्यूल में, यानी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब पॉसिबल है? When that molecule contains two group. जब उस मॉलिक्यूल में कितने ग्रुप हो? When that molecule contains two group. Clear? And out of these two group, one group contain hydrogen which is attached with an electronegative atom. एक ग्रुप में तो क्या प्रेजेंट होना चाहिए? हाइड्रोजन, जो कि किससे अटैच्ड होगा? आपका एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मींस FON. और सेकेंड ग्रुप कंटेन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. सेकेंड में हमारा क्या प्रेजेंट होना चाहिए? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. फॉर एग्जाम्पल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल. फॉर एग्जाम्पल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल. हियर इट इज बेंजीन रिंग. बेंजीन रिंग के ऊपर जैसे ही हमारा OH आता है, इट बिकम्स फिनॉल. ये हमारा फिनॉल हो जाता है. एंड जब यहाँ पे हमारा NO2 ग्रुप आता है, सो इट इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल. ये हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हो जाता है. ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल. नाउ देखिए, इन दिस आई हैव टू ग्रुप. मेरे पास दो ग्रुप है, एक है OH एंड सेकेंड NO2. नाउ इन दिस OH वी हैव हाइड्रोजन एंड दैट हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन. हाइड्रोजन है मेरे पास और वो हाइड्रोजन किससे अटैच्ड है? ऑक्सीजन से. Means hydrogen is attached with an electronegative atom and the size of electronegative atom is small. और second group में मेरे पास क्या present है? In second group I have nitrogen. Second group में मेरे पास क्या है? Nitrogen, which is an electronegative atom. So hydrogen bond is present between hydrogen and nitrogen. इस हाइड्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में क्या प्रेजेंट हो गई? हाइड्रोजन. सो इट इज विद इन द मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई एंड दिस इज नोन एज इंट्रामॉलिक्यूलर. सो व्हेन देयर इज बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स देन इट इज इंटर. व्हेन विद इन द मॉलिक्यूल देन इट इज इंट्रा. इंट्रा के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है? दैट द मॉलिक्यूल कंटेन्स टू ग्रुप. फर्स्ट ग्रुप कंटेन हाइड्रोजन which is attached with an electronegative atom and the second group must contain an electronegative atom. ये conditions हमारी required conditions है. Clear? Now second,
इफ वी हैव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो देखो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कर रहा है, सपोज इफ वी डोंट हैव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, बट ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे आर स्लाइटली क्लोज टू ईच अदर, ज्यादा तो नहीं बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा सा ये एक दूसरे से क्या है, क्लोज है, एंड बिकॉज ऑफ दिस क्लोजनेस, क्योंकि क्लोजनेस है हमारी, सो क्लोजनेस है तो मतलब जब हम इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, तो फर्स्ट कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड देन ये क्या होंगे, रिलीज होंगे, देन ये रिलीज होंगे, सो इट इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट, इट इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड्स। सो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर प्रेजेंट होती है तो वहां पे क्या होता है, इट इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट, इट इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट, ये हमारे बॉइलिंग पॉइंट को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ये हमारे बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज, क्यों इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज ऑफ एन एक्स्ट्रा बॉन्ड, एक्स्ट्रा बॉन्ड की वजह से मॉलिक्यूल क्या आ रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ क्लोजनेस इनको दूर करना क्या है हमारे लिए डिफिकल्ट है, इनको दूर करना हमारे लिए डिफिकल्ट है, एंड सेकेंड थिंग इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, ये क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, surface area increases, surface area increases, how surface area increases, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, दो मॉलिक्यूल एक साथ अटैच्ड होंगे, एंड दो मॉलिक्यूल जब एक साथ अटैच्ड होंगे तो सरफेस एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो फर्स्ट थिंग व्हाट इट डिड मींस, सपोज इसका सरफेस एरिया कितना है, ओनली दिस मच इज द सरफेस एरिया। नाउ सपोज इफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन दीज टू और ये दोनों अटैच्ड हो गए, नाउ व्हाट इज द सरफेस एरिया, द सरफेस एरिया इज दिस मच, सो सरफेस एरिया क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्लियर। इफ आई टॉक अबाउट इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर क्या कर रहा है, within the molecule hydrogen bonding, now due to the within the molecular hydrogen bonding there is a contraction in the molecule, मॉलिक्यूल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, मॉलिक्यूल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, मीन सपोज इफ माई टू हैंड्स आर राइट नाउ फ्री, अगर कोई मेरे दो हाथों को बांध देगा तो क्या हो जाऊंगी मैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाऊंगी, एंड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन द सरफेस एरिया डिक्रीजेस, सरफेस एरिया मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो सिमिलर थिंग हैपन इन द इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर में भी यही चीज होती है, क्योंकि वहां पे विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो मॉलिक्यूल में कंट्रैक्शन हो जाता है, ड्यू टू कंट्रैक्शन सरफेस एरिया क्या कर जाता है, डिक्रीज, एंड ड्यू टू द डिक्रीज इन द सरफेस एरिया बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, डिक्रीज, सो इट डिक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट, इट डिक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट and it decreases surface area also. So एक तो ये बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज करता है और दूसरा ये सरफेस एरिया को भी क्या करता है, डिक्रीज, क्योंकि ड्यू टू इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूल है वो एक्सपैंड होता है, एंड ड्यू टू इंट्रामॉलिकुलर मॉलिक्यूल कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होने से सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, एक्सपैंड होने से सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे इंक्रीज होगा एंड हियर द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। सो दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये उनके थ्रू होने वाले रिजल्ट्स हैं। सो वी हैव स्टडीड अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेफिनेशन, the conditions required for the hydrogen bonding, the strength of the hydrogen bonding and the types of the hydrogen bonding. So that's all for today. In the next video, we will talk about the consequences of the hydrogen bonding.